Okay, a very good morning, friends. Uh, Today in this video, we are going to analyze a multi-story building in StatPro. Okay, so what you are seeing on the screen is the isometric view or the 3D view of the building. Okay, let's also see its plan view. So this is the plan view of the building. Okay, the building is 3 plus 3, 6 meter in x direction and 4 meter in y direction. Overall, there are two rooms. So the dimensions of the building are 4 meter by 6 meter, and there are two more columns at 3 meter distance. These are the different features or values of the this multi-story building. The plan dimension is 6 by 4, as I informed you. Plinth height. The plinth height of the building is 2 meter. So if you see the building, these are the elevation and side views. So from bottom to the plinth level, this is the plinth level. So the height of the plinth is taken as 2 meter from the foundation level, and then 3.5 meter. 3.5 meter is the story height. Okay, so you can see plinth height is 2 meter, story height is 3.5 meter. Material we are using RCC M25. Beam size is 300 by 400 mm. The beams are 300 by 400 mm. The columns are 250 by 250 mm. Supports are fixed, and load cases, the following load cases we are going to create. First is the beam column self weight. That is the self weight of the structure due to beam and column. Number two, dead load of the slab. Number three is the dead load due to walls. Then there is a live load because all of us, and then fifth one is the load combination, which is 1.5 times all these load cases. Okay, uh, so this is the side elevation, the plan view of the building. uh, so let's move directly to the StatPro and make this structure. So what the strategy we are going to follow is that first we will make this elevation. First we will make this elevation, and then we will copy this elevation on the other side, right? So this is a strategy we are going to follow. We can make either this elevation and then copy, or we can make this elevation and copy. Both are easy, we can follow any of them, right? Okay, so let's start. Again, this is the plan view. Let's come to the plan view. So what the let's follow that, we'll make these two columns, this column and this column. So this frame we are going to create, and then we will copy this frame to 3 meter and another to 3 meter. This will make our work easy. So what we are going to do is that we are going to make this structure in the StatPro, and then we are going to translational repeat this frame in two steps. Okay, and in this way our three-story building will be constructed. All these steps I have already communicated in the class also, and the basic steps that we need to follow, they are been described in the first 5 videos of this playlist. So you see all those videos, then you will come to know the basic steps. So here we will not discuss in very detail either, because all the steps have already been explained. So let's start. Take a new project. We go for space frame 3D building. Name the building. Say I'm giving a name of M3. You can give any name. Remember, unit is meter and then kilonewton. Next, then he's saying to add beam. Add beam, okay, and finish. Okay. So this is the isometric view what we are seeing. So if you again go to our plan, uh, we are going to make this portal frame and then copy it in this x direction. So in StatPro, what we are having is, right now we are having a grid. So I want a grid in xz plane. I want a grid in xz plane. So let me edit. Not xz, sorry. I need a grid in yz plane. मुझे yz plane में grid चाहिए. So I will edit and I will select it yz. I will select it yz. तो अब देखिए ये जो grid जो yz में आ चुकी है, इस ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पे ध्यान रखिए. Now the grid is in yz. Now what is the number of construction line and grid spacing? So let grid say grid spacing 0.5 meter and 0.5 meter, and let us say we need 20 lines. So 20 grid lines at 0.5 meter uh, will make uh, 10 meter. Okay, so the number of grid lines in y axis is taken as 20 and at 0.5 meter. So we will have 10 meter of grid height.
right? And just see again the structure. uh, we are making this line, or you can say this portal frame, right? So total height is 3.5, 3.57, 7 into 9 meter. And what we have taken is, we have taken 10 meter height. So YZ plane, YZ plane, and then 20 grid lines at 0.5 meter. This will make 10 meter height. And in Z direction, we need only, I think, one grid line. And at a spacing of, what is the spacing in X, in Z direction? Z direction, the spacing is 4 meter. Okay, you just see 4 meter. This is the spacing in Z direction. So again come to make distance 4 meter. Okay, and okay, here you can change the grid spacing as either 1 meter or sufficient, I think. Even 4 meter we can place. Okay, we need 4 lines at a spacing of 1 meter, which will be total 4 meter distance. Okay, now change our view. Let us see from माइनस एक्स दिख रहा है यहाँ से, प्लस हम लोग माइनस एक्स से देखेंगे, इधर हम लोग इधर से इस तरफ देखेंगे, हम लोग इस तरफ देखेंगे, तो हमें इस तरफ से देखना है. ओके, सो लेट अस व्यू फ्रॉम माइनस एक्स. तो हमारे सामने स्ट्रक्चर आ चुका है हमारा. सो लेट अस मेक द स्ट्रक्चर वेरी क्विकली. ये हमारे पास में पहले 2 मीटर पे फर्स्ट पॉइंट इज एट 0,0, देन 2 मीटर, then again at 3.5 meter height, then 3.5 meter height. Okay, so let's go to the structure. 0 meter, then 2 meter, 2 plus 3.5, 5.5, 2 meter plus 3.5, 5.5, 5.5 plus 3.5, 9 meter, 9 meter. Again keep on clicking on the points I am saying, and then again this is a grid of 1 meter spacing, so at 4 meter, again at 5.5 meter, again at 2 meter, and then again at 4 meter. Okay, and press escape. Okay, so this method I have already explained you in previous videos. Now close it. Okay, sorry, few more beams left. At 5.5 meter we need a beam, and then again escape or node beam, and then again activate it. Then 2 meter and this meter. Okay, if the beams are not connected, then we need to give escape and restart the this button or this command. Okay, so close it. So now what we see, we can see that from minus x-axis or our side elevation is prepared, right? This is same, and let us see the spacing. What is the spacing? Click on the spacing button. Difficult to press. Geometry, view dimensions is there. View dimensions is in tools, display current unit, display dimensions, dimension beams. Okay, display. ओके, ये यहाँ पर भी है इसका बटन, बट मेरा रिकॉर्डिंग का बटन है, अगर मैं प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, सो ये हमारा जो है बीम आ चुका है. नाउ हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट्स. अगेन क्लिक ऑन जनरल. जनरल में हमें सारे मिलेंगे, ये जो जनरल टैब है इसमें हमें सारे में प्रॉपर्टीज मिलेगी. सबसे पहले जाओ सपोर्ट पर, गो टू सपोर्ट्स, देन क्रिएट एंड फिक्स सपोर्ट. हमारा स्ट्रक्चर में क्या सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है. ये देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर में सपोर्ट कैसे है, फिक्स सपोर्ट है. सो सेव. सो फिक्स सपोर्ट, यूज कर्सर टू असाइन. आई एम यूजिंग इजीएस्ट मेथड, क्लिक एंड क्लिक. ओके, यूज कर्सर टू असाइन से मैंने सपोर्ट असाइन कर दिया, स्टॉप कीजिए. नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट हमें देने हैं बीम की साइज़ और कॉलम की साइज़ देनी है. तो हमें सेक्शन बनाना है और M25 कॉन्क्रीट हमें काम में लेना है. तो पहले M25 बनाते हैं. तो अगेन जनरल पे जाएंगे तो नीचे मिलेगा मटेरियल. मटेरियल पे जाइए, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज चेक कीजिए, एडिट प्रेस कीजिए, तो आपके सामने सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी. बस में M25 है तो हमें यंग्स मॉडुलस चेंज करना पड़ेगा, जो है 2.5 E7. ये 2.1 है तो शायद ये M20 कंक्रीट हो सकता है. ठीक है ना. तो और बाकी प्रॉपर्टीज जो है, अच्छा डेंसिटी हम लोग देंगे 25 kN पर मीटर क्यूब, इसमें 23.56 है. तो ये दो चेंज हम लोग करेंगे. ठीक है ना. सो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, नाम दीजिए M25. यंग्स मॉडुलस क्या होगा हमारा 2.5 E7, उसमें 2.1 था, हमारा 2.5 हो जाएगा. पॉइजन रेशियो 0.17, डोंट चेंज इट, नॉट रिक्वायर्ड. डेंसिटी 25 kN पर मीटर क्यूब. थर्मल कोफिशिएंट 1E-5. क्रिटिकल डैम्पिंग 0.05. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, दिमाग में लगाइए. शेयर मॉडल्स को 0 रहने दीजिए, डोंट पुट एनी वैल्यू.
स्टडीज में एरर देता है कई बार। ओके, सो हमारे पास M25 क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पर देखिए जनरल टैब के अंदर प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी आ जाएगी और यहाँ पर डिफाइन, डिफाइन पे क्लिक किया तो आ जाएंगे हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें क्या क्रिएट करना है, एक तो कॉलम क्रिएट करना है 250 बाय 250 के, तो ये मीटर के अंदर है, सो 0.25 बाय 0.25 और मटेरियल होगा M25। ठीक है, ऐड, हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। हमें बीम क्रिएट करना है 300 बाय 400 के, तो ZD कितना होगा मेरा 0.3 विड्थ, डेप्थ कितनी होगी YD 0.4 और M25 है, ऐड कीजिए, क्लोज। तो देखिए M25 आ चुका है, बीम और कॉलम दोनों बन चुके हैं। ओके, लेट असाइन टू द कॉलम्स। तो कॉलम को असाइन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम को सपोज सेलेक्ट करता हूँ, पहले हमें कॉलम को क्लिक करना पड़ेगा, दैट इज 0.25 बाय 0.25। ओके, नाउ क्लिक दिस, सेलेक्ट दिस कॉलम एंड विद कंट्रोल बटन यू कैन सेलेक्ट अदर कॉलम्स ऑल्सो। ये सब एक साथ सेलेक्ट हो गए, 0.25 बाय 0.25 है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, प्रोसेस एंड यस। ये सारे मेथड मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। हो गया, तो हमने क्या कर दिया, कॉलम्स को असाइन कर दिया 0.25 बाय 0.25। लेट्स असाइन टू बीम्स ऑल्सो, ऊपर वाली बीम को फिर कंट्रोल के साथ में एकदम पास में सेलेक्ट करना है, ज़्यादा करोगे तो कॉलम भी सेलेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल बनाओगे तो कॉलम भी सेलेक्ट हो जाएगा। ये तीनों बीम सेलेक्ट कर दी और मैं लेना 0.4 बाय 0.3। अरे चला गया है, तो फिर से पहले हमें जो है इसको सेलेक्ट कर रखना मटेरियल को, M25 को, उसके बाद में जो है हम बीम सेलेक्ट करेंगे अगेन। ओके, सो 0.3 बाय 0.4 टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। हो गया, तो देखिए हमने क्या कर दिया इसके अंदर, हमने बीम जो है बीम को असाइन कर दिया है, कॉलम को असाइन कर दिया है, सपोर्ट्स लगा दिए हैं। अब हम लोग जाएंगे पहले लोड्स के ऊपर, गो टू लोड्स एंड डेफिनेशन, ये आ गया लोड्स एंड डेफिनेशन के ऊपर। इसमें आएगा लोड केस डिटेल, ये बता चुका हूँ मैं पहले आपको, ठीक है ना। लोड केस डिटेल ऐड करेंगे तो आएगा, प्राइमरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, रहने दीजिए। लोड केस 1, इसको नाम दे दीजिए सेल्फ वेट बीम एंड कॉलम। ओके, दिस इज सेल्फ वेट बीम एंड कॉलम, ऐड कीजिए। दूसरा में क्या लोड केस ऐड करना था, देखिए इसका देखा है, बीम एंड कॉलम सेल्फ वेट पहला हो गया, दूसरा स्लैब डेड लोड, ओके, तीसरा वॉल डेड लोड। तो ये हमारा स्लैब डेड लोड ऐड कीजिए, फिर वॉल डेड लोड ऐड कीजिए, और लास्ट में क्या था हमारे पास में, लाइव लोड ऐड कीजिए। ये चार लोड ऐड कर दिया हमने। ओके भाई, अब हम लोग आएंगे हमारे सेल्फ वेट ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स पर आएंगे। जैसे हम लोग सेल्फ वेट ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, पास में जो है इंडिविजुअल लोड्स खुल जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सेल्फ वेट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सेल्फ वेट, ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, ऐड कीजिए। हो गया, नेक्स्ट स्लैब डेड लोड, तो स्लैब के ऊपर क्लिक कीजिए, लोड के चेंज कीजिए स्लैब। ओके, अगेन स्लैब डेड लोड ऐड कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लैब डेड लोड में ये आएगा हमारा फ्लोर लोड, ये क्या आएगा हमारा फ्लोर लोड। तो फ्लोर में जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग से, एक बार के लिए मैं बताता हूँ आपको 5 kN पर। स्लैब और फ्लोर फिनिश कर लेते हैं, तो 5 kN पर मीटर स्क्वायर में डेड लोड डाल दिया, दिस इज द डेड लोड ऑफ स्लैब। अब ये 5 kN कहाँ से आया, ये कैलकुलेशन है जो डेंसिटी को जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तब आएगा। तो स्लैब की जो हमारी थिकनेस होती है जनरली 150 mm होती है RC स्लैब की, तो 0.15 बाय 225 तो 3.75 आएगा, और 1.25 हमने फ्लोर फिनिश का ऐड कर दिया, तो ये हो गया -5 kN पर मीटर स्क्वायर। इसको कर दीजिए, अच्छा वाई रेंज ऐड कर दीजिए यहाँ पर 0 से 10, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर टोटल हाइट 10 मीटर है, तो 0 से 10 कीजिए ऐड। ओके, क्लोज। इसके बाद में वॉल डेड लोड ऐड कीजिए। वॉल का जो लोड है वो आएगा बीम के ऊपर। देखिए वॉल कहाँ आती है, बीम पर आती है, कहाँ पर आती है, बीम्स पर आती है। तो बीम पर जब वॉल आएगी तो हमें जाना पड़ेगा मेंबर लोड में। किस जाना पड़ेगा, मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स से वॉल का जो लोड आ रहा है वो है -10 kN पर मीटर, और ये ग्लोबल वाई डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन में, ग्लोबल वाई बोले तो नीचे वाले डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन है। तो -10 कीजिए ऐड। ओके, और लाइव लोड को ऐड कीजिए, तो लाइव लोड वापस क्या बनेगा, फ्लोर लोड बनेगा। और जनरली हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम लेते हैं -2, कितना लेते हैं, -2। वाई रेंज 0 से लेकर के वाई रेंज
10 मीटर तक। ओके, ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए। ठीक है, तो ये लोड आ गया है। अब मुझे फ्लोर लोड लगाने की जरूरत नहीं होती, फ्लोर लोड अपना आप लग जाता है। और ये जो सेल वेट है इसको हमें असाइन करना पड़ेगा। तो सेल वेट को कीजिए अब असाइन टू व्यू, क्योंकि सेल वेट जो है सभी बीम और कॉलम पे लग रहा है, तो इसलिए असाइन टू व्यू कीजिए और असाइन कीजिए। तो देखिए सेल वेट सब पे लग गया। अभी वॉल का लोड है, वॉल का लोड कहाँ पर आएगा, बीम पर आएगा। जहाँ क्वेश्चन मार्क है इसका लोड अभी तक लगा नहीं है। जो फ्लोर लोड था अपने आप वहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, इसका मतलब लग गया है। वॉल लोड इज -10 kN पर मीटर। सो दिस वॉल लोड, वॉल्स कहाँ पर होती है, वॉल्स बीम के ऊपर होती है। बीम के ऊपर वॉल्स आती है तो वॉल लोड आएगा बीम के ऊपर। इसको असाइन कीजिए। नो 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 नो, इसको सिलेक्ट किया हमने। मैं इस बार चेंज करता हूँ, यूज़ कर्सर टू असाइन, आसान है, यूज़ कर्सर टू असाइन। और फिर असाइन को एक्टिवेट कीजिए। तो इसके ऊपर 4 पे लगाना है और एक इस पे लगाना है। तो देखिए वॉल लोड भी अब जो है क्वेश्चन मार्क चला गया, तो वॉल लोड लग गया। ठीक है, तो ये हमारा गया, वॉल लोड आ गया, जो फर्स्ट फ्लोर पर भी लग रहा है और ग्राउंड फ्लोर पे भी लग रहा है। ठीक ना। छत पे हम लोग मान रहे हैं कि वैसे पैरापेट वॉल लगा सकते हैं, अभी के लिए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। छत के ऊपर भी जो है हम लोग पैरापेट वॉल लगाते हैं, 1.5 फीट की देते हैं, अभी के लिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉल लोड हो गया। तो हमने लोड सभी लगा दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने सभी के बीम्स के जो है क्रॉस सेक्शन दे दी है, मेटेरियल क्रिएट कर दिया है, लोड लगा दिए। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, रिपीट। तो उस पूरे को सिलेक्ट कीजिए, पूरे को सिलेक्ट कीजिए। देखिए वापस से हमारी बिल्डिंग में आई है। तो ये क्या है, ये हमने बना दिया, ये वाली लाइन जो है हमारी बन चुकी है। गॉट इट, ये वाला हमारा क्या हो चुका, पूरा बन चुका है। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कितने मीटर से करना है, 3 मीटर से हमें कॉपी करना है। और कितने स्टेप में करना है, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 मीटर, डिस्टेंस रहेगा 3 मीटर। सो आइए स्टेट प्रो के अंदर इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, वन मोर थिंग, ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ये कॉपी किस डायरेक्शन में होंगे, एक्स डायरेक्शन में। एक्स इज राइट, ओके, वाई इज अप। तो स्टेट प्रो माई, अभी हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, -x से देख रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, -x से देख रहे हैं। तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया। एक बार मैं इसको 3D व्यू में देखता हूँ। ये 3D व्यू में आ गया मेरे सामने, देखा। तो इसको मुझे एक्स डायरेक्शन में करना है। तो देखिए यहाँ पर है ट्रांसलेशनल रिपीट, ये हमने पहले भी काम में लिया है क्लास के अंदर। ट्रांसलेशन रिपीट पे क्लिक कीजिए। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग कितनी होगी मेरी, 3 मीटर। कितनी, 3 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन में करना है, एक्स डायरेक्शन में करना है। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में करना है, राइट। और क्या करना है, लिंक स्टेप्स, स्टेप्स को लिंक कर दो, स्टेप्स को लिंक कर दो। क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है मुझे, ऑल ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी सब करना है, लोड वोड सब कॉपी करना है, तो उसको ऑल कीजिए। ठीक है, और इसको स्टेप्स कितने होंगे मेरे, 2 स्टेप्स होंगे 3 मीटर के ऊपर। लिंक स्टेप्स आ गया, एक्स आ गया। अच्छा, मुझे चाहता हूँ बेस को कनेक्ट नहीं करें, तो उसके लिए ओपन बेस का ऑप्शन होता है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये सपोर्ट को भी कॉपी करेगा, सपोर्ट को कनेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने ओपन बेस को क्लिक कर दिया और कीजिए ओके। देखिए बनाओ आ गया हमारा स्ट्रक्चर, रिपीट हो गया पूरा। ओपन बेस किया इसलिए बीम कनेक्ट नहीं हुए, वरना बीम ये भी कनेक्ट हो जाता है, फिर हमें डिलीट करना पड़ता है उनको। अच्छा, इसमें क्या क्या देखिए, ये जो इंटरनल बीम है इन सभी पे तो क्या है मेरा, वॉल लोड आ गया। मगर ये वाले जो बीम है इन पे वॉल लोड नहीं आया। देखिए इस पर नहीं आया, इस पर नहीं आया, सॉरी ऊपर वाले बीम पे तो है भी नहीं, पर अंदर वाले जो बीम है ये वाली, इस पर देखो वॉल लोड नहीं है, इस पर वॉल लोड नहीं है, इस पर वॉल लोड नहीं है, इस पर वॉल लोड नहीं है। समझ लो, इन पर वॉल लोड नहीं है। तो क्या करें, कोई नहीं, इसको फ्रंट से व्यू करो, बिल्डिंग को फ्रंट से व्यू। अच्छा दिखा दूँ मैं आपको, एक प्लान दिखा देता हूँ मैं। और टूल्स, बीम डायमेंशंस, डिस्प्ले। देखिए जो हमने बनाया है वही है, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। फाइल में चेक कीजिए, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ओके, सेम है हमारा। नाउ क्या करते हैं, इसको फ्रंट से व्यू करते हैं, व्यू फ्रॉम +z। ये +z देखा। तो ये वाले जो बीम्स हैं इनको सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में। ऊपर वाले बीम छोड़ दीजिए, वापस कंट्रोल के साथ में। और देखिए 3D में कैसे दिख रहा है। तो हमने क्या किए, +x डायरेक्शन में जो बीम आए हुए हैं वो सिलेक्ट किए, और इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, वॉल लोड लगाना है। क्यों, क्योंकि वॉल लोड में लगा हुआ नहीं था। तो ये मैंने 10 kN पर मीटर में सेलेक्ट किया हुआ है। ये मैंने बीम सेलेक्ट कर दिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। देखिए अब मेरा जो है ये सभी को असाइन हो गया है। बीम को मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, वापस 3D व्यू कर लेते हैं, 3D व्यू।
राइट। अभी क्या करना है मुझको, इसको एनालिस करना है। क्या करना है, एनालाइज। तो क्या करेंगे, कमांड्स एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस ऑल, ओके। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सबको एनालिस कर दिया है। अब जाएंगे एनालिसिस के ऊपर और रन एनालिसिस और सेव। ये कह रहा 24 एरर्स। 24 एरर्स कहाँ से, कभी चेक करते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या है। व्यू आउटपुट फाइल पे कीजिए, डन कर दीजिए। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इलास्टिक मॉडल्स गिवन नहीं है, समझ गया समझ गया। ये जो बीम्स को लिंक किया था ना, उस बीम्स की प्रॉपर्टीज हमने दे नहीं रखी है। तो वापस इसको प्लस फ्रंट से व्यू कीजिए। ये जो बीम्स क्रिएट हुई, इनको प्रॉपर्टी दे नहीं रखी है, वापस प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी इनको। ठीक है, तो वापस जाइए प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी में बीम्स की प्रॉपर्टी क्या थी, 300/400। वापस चली गई, कोई नहीं, वापस सेलेक्ट कर लो। मैं बस सिलेक्शन से सिलेक्ट कर रहा हूँ बीम्स को, बहुत सारे मेथड है काम करने के। ठीक है, 300/400 असाइन, यस। तो जो लिंक स्टेप के करते हैं, जो बीम्स क्रिएट हुई थी, वो उनको प्रॉपर्टी असाइन नहीं थी, अब मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, वापस जाओ, एनालाइज, एनालिसिस, इसको बंद कर दो, एनालाइज, एनालिसिस, सेव। देखिए 0 एरर, एक वार्निंग, वार्निंग छोड़ दो यार, वार्निंग कोई नहीं, पढ़नी चाहिए वैसे। ये पुश प्रोसेसिंग के अंदर, ओके, आ गया हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने छोड़ दिया, हमने लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर अभी तक नहीं दिया, वो केस में बनाना था, वापस जाना पड़ेगा। ये भी इंडिविजुअल लोड केस बने हुए हैं, मैंने बताया था आपको लोड कॉम्बिनेशन। तो वापस जनरल में जाइए, लोड्स पे जाइए, लोड्स पे जाकर के लोड केस डिटेल जो है, क्लिक कीजिए इस पर, लोड केस डिटेल में ऐड कीजिए। अब जैसे ही ऐड करोगे, ये कहेगा रिजल्ट डिलीट कर दूँ क्या, ये आ गया लोड डिफाइन कॉम्बिनेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन 1.5 फैक्टर 1.5, ये मैंने क्लास में बताया था आपको। 1.5 टाइम्स डेड लोड DL प्लस लाइव लोड करते हैं RCC के अंदर, RCC डिजाइन करते तो, और सबको इधर ले आओ। तो ये क्या करेगा, लोड कॉम्बिनेशन में सभी लोड आ गए एक साथ में। ठीक है, ऐड करो। ये रिजल्ट फाइल को डिलीट कर दूँ, हाँ कर दो भाई, क्लोज। आ गया हमारा लोड कॉम्बिनेशन। वापस एनालिसिस करो, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव, ओके। आ गया हमारे पास में, जाइए पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, ओके, आ गया। अब यहाँ से लीजिए 1.5, फिफ्थ नंबर, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। इसके रिफ्लेक्शंस को जूम कर दीजिए कंट्रोल के साथ में, देखिए इस तरह से जो है बिल्डिंग रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड शेप है। बेंडिंग डायग्राम कैसा होगा इसका, ऐसा होगा। कंट्रोल से वैल्यूज बढ़ाती है, देखिए वैल्यूज देखनी है तो रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, मैक्सिमम, ओके। और रिएक्शंस में भी ग्लोबल एक्स, ग्लोबल वाई, ग्लोबल जेड। मूवमेंट देखने तो बेंडिंग एक्स आर, इसे मूवमेंट दिख जाएंगे। ठीक है, एनोट आ गया। अब देखिए एक साथ बहुत सारी चीज़ आ गई है, एक बहुत क्लटर हो गया, इसलिए हम सब एक साथ ऑन नहीं करते। व्यू रिजल्ट्स, एक बार रिएक्शंस को ऑफ कर दो, रिएक्शंस को ऑफ कर दो, एनोट, रिएक्शन हो गई क्लोज। सामने से देख लो इसको, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई, देखिए, ओके। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस हो चुका है। अब कई बार इसकी वैल्यूज़ को देखने में दिक्कत आती है, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, वैल्यूज़ को देखने में दिक्कत तब क्या करें। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको जो है फ्रंट से क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास फ्रंट व्यू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बीम कर्सर से फ्रंट वाली बीम सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली बीम। ठीक है, तो मैंने क्या क्या देखिए, इस पूरी के अंदर एक ये वाली मैंने पोर्टल फ्रेम सेलेक्ट की है। अब मैं करता हूँ व्यू, व्यू व्यू व्यू, और व्यू के बाद में व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, ओके। तो क्या सिर्फ ये वाली पोर्टल फ्रेम आएगी। अब इसको आप जो है -X से व्यू कर लीजिए, देखिए। तो सिर्फ इसका बेंडिंग देख, BMD देखना है तो इस तरह देख सकते हो आप। सिर्फ इसी का SFD देखना है तो रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, शेयर फोर्स एंड्स पे कर दिए, बेंडिंग को कर दी, एनोट, क्लोज। और यहाँ से F5 शेयर फोर्स को ऑन कीजिए, ठीक है, शेयर फोर्स आ गया। तो एक पोर्टल फ्रेम का डायग्राम, अगर बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, क्लिटर हो रही है, तो आप पोर्टल बाय पोर्टल भी देख सकते हो। ठीक है ना, वापस लेके आना है तो क्या करो, वापस व्यू में, व्यू में होल स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर आ गया। और फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए -X से देखिए। अब मैं सिर्फ फ्रंट वाले पोर्टल को देखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं फ्रंट व्यू वाले पोर्टल को सेट करूँगा। देखिए इसको 3D में जाओ, फ्रंट वाली पोर्टल आ गई, व्यू, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली,
तो क्या होगा, सिर्फ फ्रंट वाली पोर्टल दिखेगी क्योंकि इन्हीं को हमने सेलेक्ट किया था, बाकी सब गायब हो गई। अब इसको प्लस एक्स देख लो। अब आराम से आप इसकी एस की वैल्यूज़, या फिर आपको देखना है फॉर एग्जाम्पल BMD की वैल्यूज़ देखनी है, तो उसको बंद कर दो, शेयर को बंद कर दो और बेंडिंग मोमेंट को नोट कर दो, नोट मैक्सिमम नोट, ओके क्लोज। और यहाँ से शेयर को बंद कर दो और बेंडिंग मोमेंट को दे दो। आगे देखो BMD की वैल्यूज़ पढ़ने में भी आ रही है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लटर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल बीम की वैल्यूज़ को भी अगर आपको देखना है तो कर सकते हो, आप चाहे तो इंडिविजुअल बीम को सेलेक्ट करके देख सकते हो कि इस इंडिविजुअल बीम का कैसे होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बीच वाली बीम सेलेक्ट की और व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, तो देखो सिर्फ इस बीम का दिखाया मेरे को, समझ लो। इस बीम को और देख सकता हूँ मैं, रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट में एंड पे भी कर दो मैक्सिमम के साथ में एंड नोट, तो क्या हुआ, इसके एंड पर वैल्यू आ गई। तो इन दिस केस आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसको सिलेक्ट कीजिए, व्यू पे जाइए, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, तो क्या होगा, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखेगा जो सिलेक्ट हुआ है। वापस देखना है तो व्यू होल स्ट्रक्चर, व्यू व्यू होल स्ट्रक्चर कीजिए, तो पूरा एक साथ आ जाएगा, समझ गए। अगर वैल्यूज़ बहुत क्लिटर हो रही है, समझ में नहीं आ रही, तो क्या करें, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस के लिए भी सिमिलरली, रिएक्शंस में भी रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, रिएक्शंस में खूब सारी क्लिटर हो रही है, तो क्या करो, सिंपल से मैंने किया ग्लोबल वाई और मैंने किया एनोट, तो क्या वो सिर्फ ग्लोबल वाई आई। फिर क्या, ग्लोबल वाई को बंद कर देंगे, ग्लोबल एक्स को देखेंगे, तो रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, रिएक्शंस में ग्लोबल वाई को बंद कर दो, से ग्लोबल एक्स को और करो एनोट, तो क्या हुआ, सिर्फ एक्स वाली रिएक्शंस आई। तो अगर आपको ज़्यादा क्लटर हो रहा है तो 1 बाय 1 वैल्यूज़ देखिए, उससे क्लटर नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो 25 मिनट का हो गया, काफ़ी लंबा हो गया है, इसको मैं स्टॉप करते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा किस तरह हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जो है शुरुआत से एंड तक एनालाइज कर सकते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसमें इसके RCC की डिज़ाइन कैसे की जा सकती है, ठीक है ना। ये एनालिसिस का था, डिज़ाइन का वीडियो जो नेक्स्ट में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।